आप सभी को पता होगा कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप सबने सुना होगा कि देयर इज एन एंटिटी विच इज अराउंड यू बट you can see it, you can feel it, but you cannot explain it. In some cases you can explain it, but nobody hears you. And in some cases, even when everybody is able to hear you, they will not respond to it. कि भाई वो जो नज़र है उसकी लग ना जाए किसी को. Especially in terms of cricket, that kind of entity. जैसे नॉर्मल लाइफ में आप भूत प्रेत पिशाच की बात कर सकते हैं, जिन हो सकते हैं, उनकी आइडेंटिटी ब्रह्म पिशाच हो सकते हैं, पर क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में दैट एंटिटी इज कॉल्ड द वन विच कैन नॉट बी नेम्ड बाय द बिग विग्स. इट्स कॉल्ड बॉम्बे लॉबी, especially in the context of Indian cricket team and the domestic circuit, of course. So now that I've said the premise, I'm going to welcome everybody to today's analysis of the Indian cricket team's performance of now, which is the ongoing series against New Zealand, which we are on the verge of perhaps losing 3-0 in our own backyard. Indian team's performance in the last series against Bangladesh, in the World Cups, and the series around it. So let's start with the Indian cricket team's performance. We have lost 2 tests in a row against a team which is known as a Bangladesh of Sena countries. Sena means, South Africa, England, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया. तो सेना कंट्रीज की ये बांग्लादेश है, न्यूजीलैंड, जो कि अभी श्रीलंका से 500 रन की लीड खा के आ चुकी है. उसके साथ आप 2 मैच लगातार हार गए, एक चेस करते हुए हार गए, एक डिफेंड करते हुए हार गए. इनके साथ आप 46 आउट भी हो चुके हैं. ठीक है, बहुत हुआ था कि न्यूजीलैंड को ना रेल दिया जाएगा, 3-0 से हराएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. वील स्टॉर्म इनटू द WTC finals, and this time we'll win at Lords because Rohit Sharma is the captain. Rohit Sharma has been riding a lot on his IPL success as a captain. उसके बारे में we will talk. सबसे पहले बात करते हैं आप कि ये जो स्ट्रीक टूटी है, जिसको कि 18-1 बोल रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में भी काफ़ी बात हो रही है. लोग कह रहे हैं कि it's an end of dominance, which it is. It is an end of dominance, especially for the Indian cricket, and it's a shame, okay, because it's not that we have the streak is broken after the total dominance all over the world. It's a home streak. It's a home streak which has been broken. 18 wins since 2012. मैं संजय मांजरेकर का एक ट्वीट देख रहा था, एंड क्रिकइन्फो के एक ऑथर हैं सिद्धार्थ मोंगा, उनका भी ट्वीट देख रहा था. दे हैव बीन ऑल इन प्रेज ऑफ द ब्रोकन स्ट्रीक, as if it's all lovely and it's such a beautiful thing has happened that the streak is broken, that they're now giving you a philosophical response as, do not be sad that it's not there, smile because it happened. और ये जो basically ये जो चल रहा है ना गेम, it's all there to protect the incumbent captain, who has proved time and again that he's not fit for the captaincy role, especially in the longer formats of the game. अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ. मैं आपको वर्ल्ड कप फाइनल्स में लेके जाता हूँ. वर्ल्ड कप फाइनल्स में पिछली बार हम 2003 में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से. उस टाइम हमने बेवकूफ़ी की थी कि हमने टॉस जीत कर चेस करना चाहा. इस बार coincidentally that did not happen. We were defending it. And फाइनल में anything above 225 is a good target. ठीक है, जनरली डिफेंड नहीं होता है अगर आपके पास अच्छे बॉलर्स हों. And considering that the Indian bowlers did very well in the World Cup, especially the ODI, that they were running like a juggernaut and steamrolling every opposition. In fact, ये सब बातें हो रही थी कि इनकी गेंदों में पता नहीं क्या टेक्निक लगी हुई है, जो भारी है तो हल्की है तो स्विंग हो रही है, etc. All sorts of stupid statements were coming from the ex-cricketers, especially from across the border. So ये हुआ फाइनल में. आपने you had them on the mat, we had the Aussies on the mat, पर तो उन्होंने बैटिंग खराब की. ठीक है, वो भी चली, 240 हमने बना लिया खींच खाच के. उसके बाद हमने 3 विकेट भी गिरा दिए. वी हैड ऑजीज ऑन द मैट. वहाँ से वो गेम निकाल गए. एक टेस्ट स्पेशलिस्ट आपका गेम निकाल के चला गया.
क्योंकि उसको पता था कि उसको हीरो नहीं बनना है वहाँ पे. He just had to drop the anchor and somebody is gonna scrap through. Okay. ट्रैविस हेड को इतने मौके मिले. यहाँ पे आपकी कैप्टनसी दिखती है. आप 3 विकेट्स डाउन था ऑस्ट्रेलिया फॉर अबाउट 30 और रन्स. आप रादर देन उनको कसने के बजाय, एग्रेसिव फील्डिंग सेट करने के बजाय आपने खुला छोड़ दिया. 2 बार तो ये ट्रैविस हेड स्लिप में बच गया क्योंकि क्लोज फील्डर्स नहीं थे आपके पास. ये किस तरह की कैप्टनसी थी कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे कि आप 3 विकेट गिर गए, उसके बाद आपने छोड़ दिया खुला मैदान. एक तो पहले आपने 25 बार पिच डॉक्टर करवाई है ना. 3 दिन तक आप भटकते रहे पिच के पास कि कुछ देखें, ऐसा ना हो कि कोई भी एडवांटेज दूसरे को मिल जाए. इतना ही पिच बनवा दो, इतने इंजीनियर की पिच कि वो बैक ट्रैक हो गया, आपके ऊपर ही बैकफायर कर गया. एंड देन यू एंडेड अप स्कोरिंग व्हाट 240 ऑन अ स्लो पिच with KL Rahul being the hero of the slowness and he scored around 60 odd runs of 100 odd deliveries. उसमें भी आप ODI को T20 समझ के खेल रहे थे और आपका PR फिर चलता है कि इंटेंट और सेल्फलेस गेम खेलते हैं. सर आप 50 ओवर का गेम खेल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपको हिटमैन के नाम से जाना जाता है. एंड देन यू एंड अप स्कोरिंग 40 odd runs and then throw a wicket away. And then your PR, which is run by your wife, it's run as if you have given some astonishing contribution to the team by getting out so cheaply in the 5th or 6th over itself. कायदे से आपको भी वहां पर एंकर ड्रॉप करके खींचना चाहिए था जितना रन बन जाए. And then you should have asked your deputy or the proverbial deputy, like not literal deputy but figurehead जो है विराट कोहली, कि आप चलो मेरे साथ टिको. वो भी साहब इनसाइड एज मार के निकल गया 50 रन के. उसके बाद KL राहुल आए, फिर आपके आए मुंबई लॉबी के मास्टर ब्लास्टर सूर्य कुमार यादव. दिस गाय केप्ट गिविंग स्ट्राइक टू ऑल द टेलेंडर्स. उसने सिराज को भी स्ट्राइक दे दी, उसने कुलदीप को भी स्ट्राइक दे दी. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बंदा खुद स्ट्राइक रख ले. भाई तू 3 डॉट खेल, पूरे 6 बॉलें तू खेल ना, आखिरी पे सिंगल ले ले. रादर देन टेकिंग सिंगल ऑफ द सेकंड और थर्ड डिलीवरी. आपको चाहिए पूरी स्ट्राइक रखें, जितना भी बना सकें. रादर देन अगर 3 रन बन रहे हैं बचा के, आप 8 रन बनाइए. 2 चौके तो मार सकते हैं. इतने बड़े बैट्समैन हैं, होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं. अहमदाबाद एक तरीके से होम ग्राउंड ही ना आपका, इंडिया में खेल रहे हैं. इट शुड वर्क ऑन टू योर एडवांटेज. आपने टुकटुका के फिर धक मार के आप आउट हो गए. वो भी आपको वो क्या नाम था उसका, हेजलवुड ना, बेवकूफ़ बना के आउट करके चला गया. तो कायदे से भी यहाँ पर आपने डिसमल परफॉर्मेंस दी. वो वर्ल्ड कप के हाथ में था, घर आने वाला था. फिर उसके बाद मूव करते हैं, चलिए T20 वर्ल्ड कप. T20 वर्ल्ड कप में क्या ड्रामा किया आपने. टिन पॉट ट्रॉफी जीत ली जो हर दूसरे साल हो रही है. उसके ऊपर लेके इतना प्यार हुआ, आपने बैठ के मिट्टी खा ली और ज़मीन पे लेट गए और पता नहीं क्या क्या तो ड्रामे किया आपने. आप मिट्टी सोचिए, ऐसे बंदा लेट के खा रहा है ऐसे करके नहीं, जैसे कि भाई बोलना नहीं चाहिए कि कोई अबोध बालक हो, ठीक है, जिसको कि समझ ही नहीं है दीन दुनिया की क्या है, वो बैठ के मिट्टी खा रहा है. एंड देन वो फिर एक पॉडकास्ट में इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जिस ज़मीन पे ये हुआ मैं देखना चाहता था, कैसी फीलिंग थी, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऑल दैट जैज़. चलिए जीत गए बहरहाल, वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस टू दैट. नाउ कमिंग टू द टेस्ट साइड, आपके पास कप्तान है रोहित शर्मा, राइडिंग ऑन 5 IPL ट्रॉफीज. देन यू हैव कोच गौतम गंभीर, राइडिंग ऑन हिज सक्सेस इन द वर्ल्ड कप फाइनल्स, बोथ द 2007 and 11 where he scored good runs. वो भाई साहब पिछले 10 साल से नॉन स्टॉप कमेंट्री किए जा रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. मैं होता तो ये करता, मैं होता तो इसको खिलाता, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो ये कर देता, मैं होता तो एवरेस्ट से ना रस्सी बांध के कूद जाता, ज़मीन पे लैंड भी कर जाता. अब जब अपनी बारी आई है तो श्रीलंका से भी हारे हैं ये शॉर्टर फॉर्मेट में. इनकी अचीवमेंट ये है कि बांग्लादेश को इन्होंने हरा के इतना बवाल काटा है कि जिससे पता नहीं कौन सी बहुत बड़ी टीम आई थी, इसको हरा दिया इन्होंने घर पे. अब न्यूजीलैंड आई जो कि सेना की बांग्लादेश है, वो अभी भी श्रीलंका से मार खा के आ रहे हैं, ठीक है. 500 रन की लीड इन्होंने सरेंडर कर दी. 500 रन की लीड खा के आए हैं ये श्रीलंका से. वो आपको 46 पे आउट भी करते हैं, वो आपको हरा के भी जाते हैं. 2 मैच हरा दिए उन्होंने आपको. तीसरा अभी आई थिंक 80 रन की लीड है, उनके 5-1 विकेट बाकी हैं. फिर वो टारगेट देंगे, जितना भी देंगे, हार भी जाए न्यूजीलैंड तो कोई फर्क नहीं पड़ता. 2-1 से सीरीज उनके नाम है, ठीक है.
तो इतना इसका पीआर चल रहा है कि स्ट्रीक ब्रेक हुई है, तो जैसे अंडरटेकर की स्ट्रीक हो गई है ना, 20-1 या 21-1 हुई थी जब ब्रॉक लेसनर से हारे थे। वो चलिए मान के चलिए कि दैट वाज स्टेज, बट इट वाज स्टिल अंडरटेकर वाज बीटन बाय ब्रॉक लेसनर, नॉट सम रैंडम संटीनो मरेला or perhaps Carlito or perhaps anybody in the mid card, है ना। मिज से नहीं हारा, किसी और से नहीं हारा। He didn't even lose to Triple H. He lost to Brock Lesnar because he chose to lose against Brock Lesnar in that particular gimmick. आप उसको स्ट्रीक ऐसे कह रहे हैं, बहुत सुंदर स्ट्रीक थी फलाना डेम का, आप न्यूजीलैंड से हार गए। क्या कह सकते हैं कि इंसान की किस्मत खराब हो तो आप ऊंट पे बैठे तो भी कुत्ता काट लेता है, दैट्स ओके। उसके बाद संजय मंजरेकर का पीआर चल रहा है लगातार नॉन स्टॉप कि भाई इतना खूबसूरत स्ट्रीक थी और इतना बढ़िया कैप्टन है, ये है, सपोर्ट करना चाहिए, फलाना करना चाहिए। आपने एक बार भी बताया कि मैं यहाँ पे थोड़ा बायस हो जाऊंगा, विराट कोहली इज कैप्टन बिकॉज ही हैज वन अराउंड 11 और 12 सीरीज आउट ऑफ दोज 18। जाहिर सी बात है 60% जीता है उसमें से उसी ने, तो क्रेडिट तो मिलेगा ना 60% का। 51% की किसी की इक्विटी हो किसी कंपनी में तो वो मालिक कहलाता है ना बड़ा। तो एक मुंह से आपके नहीं फूटा एक बार भी कि भाई इसमें जो शेयर है, मेजर शेयर ऑफ विनिंग है, बिलोंग्स टू विराट कोहली एज कैप्टन। उसको तो आपने फील्ड कैप्टन बोल के हटा दिया था टेस्ट से फॉर नो रीजन। जो सारी घटनाएं हो रही हैं ना, इन सब के सूत्रधार हैं श्री दादाश्री श्री सौरव गांगुली जी, जो जब बीसीसीआई के प्रेसिडेंट फलाना बने थे तो उन्होंने दुनिया भर की भड़ास, बदला, अपना रिवेंज, प्लेयर टाइम का सब निकाल लिया। अच्छी भली टीम में वो दुनिया भर की लॉबीज बनाकर चले गए। आज हार्दिक पांड्या अलग घूमते हैं, विराट कोहली अलग हैं, भले कितना पीआर किया जाए कि भाई रोहित शर्मा के साथ दोस्ती है, भाई एडिट्स बन रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, सीढ़ी पे स्टेज पे पड़े, सबको पता है there are some issues between them, largely because of the captaincy. They may have settled down now, but they definitely were in the first place, चाहे कितना आप डिनाई कर ले। रही बात इस गेम की ना, आप सीरीज में देखिए आपके पास कौन है कौन नहीं है। अब बॉम्बे लॉबी क्या कर रही है, उसने अपने सारे प्लेयर्स भर रखे हैं, ठीक है। इंडिया ए का भी देख रहा था, उसमें भी कैप्टन बना दिया उसको, छपरी को, तिलक वर्मा को। वो क्या करता है, रोहित शर्मा के यहाँ सब्जी लेने जाता है, ठीक है, उसके बच्चे को घुमाता है, वो कैप्टन बना बैठा है। सबसे जो थका हुआ परफॉर्मेंस है ना, वो तिलक वर्मा का रहा है इंडियन साइड में। अब यहाँ पर आपने उसको बैठा दिया है क्या नाम है, सरफराज को। सरफराज डोमेस्टिक के ब्रैडमैन है, डोमेस्टिक में बॉलिंग क्वालिटी कितनी अच्छी है हम सभी को पता है, ठीक है। वहाँ 100-150 बनाते हैं, जैसी बॉल टर्न करती है ये कायदे से स्पिन बुली कहलाते हैं, लेकिन जब टर्न होने लग जाती है ना, ये बेसिकली बुली वो है कि जिस पिच पे मरी हुई खत्म पिच है ना, वहाँ पे उड़ा के मारे, ताकत से छक्के मारे और 100-150 बना के ब्रैडमैन बने हुए हैं, और ब्रैडमैन के चाचा बने हुए हैं। और जैसी पिच घूमे, पेस तो खेली नहीं जाती इससे। इवन फर्स्ट टेस्ट में जहाँ इसने 150 बनाए थे ना, जैसी पेस आए और वापस आया और मैट हेनरी आया नई बॉल के साथ, इधर उधर बगले झाँकने लग गया, हिलने लगा, इधर तो डांस कर रहा था, आउट हो गया। सेकेंड टेस्ट में हमने देख लिया, थर्ड टेस्ट में हमने देख लिया, डक पे आउट हुआ है। ये इतनी लैक ऑफ गेम अवेयरनेस है, स्टार्टिंग विद ये आपका जायसवाल, वो इनको क्विंटन डिकॉक बनना है। he started reverse sweeping out of nowhere. Why do you have to do that? Even though you have lost 2-0, you're in the third game, you should not be doing it. What was the point? आप इतने पक्के खिलाड़ी थोड़ी हो कि रिवर्स स्वीप मारने लग गए, और जब स्पेशली आपको चाहिए कि यू हैव टू गिव टीम अ बिग स्टार्ट। अभी randomly you get out playing those duffer shots, and then विराट कोहली हैं, उनको मैं रोहित शर्मा के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनको मैं टेस्ट का प्लेयर ही नहीं मानता हूँ, ठीक है। उनके पास 10-15 ओवर से ज़्यादा का स्टेमिना ही नहीं है। 40 बॉल में भी, 100 बॉल्स में भी 40 रन का स्टेमिना, उसके बाद वो आउट हो जाएगा। इसलिए वो इंटेंट और सेल्फलेस की चल रही गेम कि इसका स्टेमिना खत्म हो जाएगा तो इधर उधर मार के आउट हो जाएगा, लोग बोल देंगे कि सेल्फलेस चल रहा है गेम इनका। वो टीम के लिए खेलता है, जो बांग्लादेश के साथ सेकेंड टेस्ट में भी हुआ था। इमेजिन उन्होंने 2 छक्के मारे, एंड देन ऐसे बात हो रही कि those 2 sixes changed the momentum of the game. It's like a tectonic shift. इतना बढ़िया शॉट मारा है, इतना बढ़िया गेम खेला है, ये बढ़िया किया, वो बढ़िया किया, एकदम से ना इतिहास रच दिया है 2 छक्के मार के टेस्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट। सोचिए, फालतू का पीआर चलता है। आप चलिए अच्छा खेलें, आपका पीआर समझ में आता है। बांग्लादेश जैसी टिटहरी वाली टीम को आपने घर में मार के
आप कूद रहे हैं इतना, तो जाहिर सी बात है आपको मुंह की खानी थी। अभी आप पता नहीं क्या यहाँ से हारे हैं, क्या मुंह लेके जो आप बीजीटी में खेलेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं आप, आपसे इंडिया में पिच, सीधी पिच पे खेला नहीं जा रहा है, वहाँ तेज़ पिच पे आप कैसे खेलेंगे। तो ये तो भविष्य के गर्भ में है, देखेंगे क्या होता है। शायद हो सकता है 4-0 से हार जाए इस बार, या हो सकता है जीत भी जाए, कोई करिश्मा हो जाए तो जीत भी जाए। लेकिन जो भी है इस समय जो है सितारे अपने गर्दिश में ही लग रहे हैं। बाकी गेम अवेंस है नहीं। विराट कोहली पे आते हैं, वो भाई साहब कभी फुल टॉस पे आउट हो जा रहे हैं, then he gets out, you know, he had scored a boundary in the same over, then he was trying to take a quick single and he got run out. आप बैकफुट पे ना हल्का सा ना टच करके आप भागिए, समझ में आता है कि बॉल फील्डर के पास जाने में टाइम लेगी, फील्डर हैज़ टू मेक एन एफर्ट। आपने फ्रंट फुट पे पुश किया है ऑन साइड पे, और आप डेंजर एंड पे भाग रहे हैं, स्पेशली क्लोज इन फील्डर के साथ, स्पेशली द टीम विच इज ऑलवेज ऑन देयर टोज विद रिस्पेक्ट टू फील्डिंग। हमारे तो थोड़ी है कि 15 में से 1-2 लगते हैं डायरेक्ट हिट, वो भी एक रविंद्र जडेजा का, और किसी का लगता ही नहीं। तो ये एक बड़ा बेवकूफ़ी वाला शॉट था, जिससे विराट कोहली इज ट्राइंग टू गेट आउट इन न्यू फैशंस, लाइक कि बहुत बढ़िया मैं तरीके ईजाद करूंगा, मैं आउट होकर दिखाता हूँ, पहले मैं देख लूँ कौन कौन से शॉट में आउट हो सकता हूँ, उसके बाद मैं रन बनाऊंगा। तो इनका समझ ही नहीं आ रहा सर का। इज इट बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट टच, इज इट बिकॉज द एज इज कैचिंग अप, इज इट बिकॉज you're not interested in the game anymore? Is it because you are going through a terrible bad luck? Whatever it is, he's in a good nick, but he's not capitalizing on that. 70 बना के भी पिछली बार वो टायर्ड सा शॉट खेल के आउट हो गया बंदा फर्स्ट इनिंग्स में। वो चाहता तो उसको छोड़ देता या ढंग से अटेंटिवली खेलता ना, तो उसके बाद नेक्स्ट डे और चांसेस होते। एक एक्स्ट्रा बैट्समैन हमारे पास होता, मेन बैट्समैन, जहां हम 106 के लीड कर पाए थे, हम शायद उसको 150 कर पाते या 200 कर पाते। तो चेजिंग 108 will definitely have less pressure relatively compared to when you're chasing 150 odd runs, 175 odd runs, 200 odd runs on the day 5 pitch in India, especially when there is too much for the spinners into it. लेकिन नहीं, अपने इंटेंट मचेंट तो है ही साथ में। अभी क्या है कि और फिर वाशिंगटन सुंदर ने जो रन आउट कराया है या किए हैं, आपको 2 रन लेने की क्या ज़रूरत थी? या तो आपका भरोसा नहीं था कि आकाशदीप 2 बॉल खेल पाएंगे। आप 0.4 पे आउट हुए ना, तो जाहिर सी बात है 0.4 पे आउट हुए, 2 गेंदें बाकी, 2 गेंद तो आकाशदीप खेल सकता था। इतना तो आपको भरोसा दिखाना चाहिए अपने प्लेस के ऊपर, लेकिन नहीं, वो भी नहीं हुआ आपसे। आप रन आउट हो गए बिना मतलब फर्जी। सारे के सारे पिच में कुछ नहीं है, बॉलर्स आर नथिंग, फील्ड पिच डजंट हैव एनीथिंग। ये अपनी बेवकूफ़ी से आउट हुए हैं सारे के सारे। और जाहिर सी बात है न्यूजीलैंड अगर 150 का दे पाती है, मैं गेम नहीं देख रहा हूँ, मैंने 108 for 5 पे लास्ट देखा था, शायद बहुत कुछ बदल गया अभी सेकंड इनिंग्स में न्यूजीलैंड के, मुझे नहीं पता। दे हैड अराउंड 80 और रन का लीड बैक देन, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज। वो जीत भी जाते हैं अगर आप ये, तो अभी सीरीज़ आपके हाथ से निकल गई। होम सीरीज़ आप हार चुके हैं। आप बढ़िया टीम से हारते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं ना, तो समझ में आता, ठीक है। एक हद को आप साउथ अफ्रीका से भी हारते, समझ में आता। साउथ अफ्रीका ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हरा के आ चुकी है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आया न्यूजीलैंड से हारना, जबकि अभी भी पिछले ही महीने वो श्रीलंका से मुंह की खा के आए हैं, वो बांग्लादेश से उनके घर जाके हार के आ चुके हैं। तो ये जो आईपीएल से कंपैरिजन होता है कि रोहित शर्मा का, आप देखिए आईपीएल में रोहित शर्मा के परफॉर्मेंसेस और उनकी कैप्टनसी देखेंगे तो हमेशा से उनके कोई स्ट्रेटेजिक मूव्स नहीं रहे हैं। इट्स ऑलवेज मलिंगा और बुमराह और पोलार्ड और पांड्या who have had immense luck on their side and they have managed to break through. एक आईपीएल तो मैं बता दूं, स्टीव स्मिथ का आरपीएस के साथ शॉट था, वो अंबाटी रायडू के हाथ में बॉल अटक गई थी। लिटरली उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि बॉल उसके हाथ में अटक गई थी, नहीं तो वो गेम निकल जाता, ठीक है। कभी पोलार्ड जो 7 फुट के हैं वो उछल के कैच लेते हैं, 8-8.5 फुट का कैच लेते हैं, वो जाहिर सी बात है, वो किस्मत की बात है। इट्स मैटर ऑफ चांस, इट्स नॉट अ कैप्टनसी। कैप्टनसी वो होती है कि जब आप देख रहे हैं कि पोलार्ड कैसे बैटिंग कर रहा है और एक गेंद पहले आप मैथ्यू हेडन को उस जगह पे प्लेस करते हैं और पोलार्ड वहीं पे कैच दे देता है, ये कैप्टनसी होती है। इसको स्ट्रेटेजिक कैप्टनसी बोलते हैं, जो कि महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे, ठीक है। तो
ये आप जो रोहित शर्मा का जो पीआर चला ना, 5 इंटेंट मर्चेंट, 5 आईपीएल ट्रॉफीज, 6 आईपीएल ट्रॉफीज, गॉड नोज हाउ मेनी आईपीएल ट्रॉफीज, उसका ले दे के कोई मतलब है नहीं। ऐसे तो श्रेयस अय्यर के पास भी है, लेकिन वो उसका क्रेडिट गौतम गंभीर खा चुके हैं। अब बेचारे के पास वो भी नहीं है, अब वो केकेआर टीम में भी नहीं खेल रहा है, अब वो इंडियन टीम में भी नहीं है आईपीएल विनर होने के बावजूद, है ना। अगर इतनी बड़ी है आईपीएल विक्ट्री होना इतना बड़ा माना जाता है, तो जाहिर सी बात है श्रेयस अय्यर को ओडीआईज और टी20 तो खेलना चाहिए। वो भी नहीं खेल रहा हो, इंजर्ड है क्या है मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ हिज वेयर अबाउट्स, आई हैव नॉट इवन रेड अबाउट इट। तो अब आते हैं गौतम गंभीर पर। ये भाई साहब 2011 से बोलते आ रहे हैं कि 97 नॉट आउट इज बेटर देन 91 नॉट आउट। ऑफ कोर्स ही हैज हिज ओन रीजंस। इनको लगता है इनको क्रेडिट नहीं मिला है कभी, जबकि इनको क्रेडिट आधा मिलता है, पर फिर भी इनको लगता है कि इनको उतना क्रेडिट, उतनी महानता नहीं इनको दी गई है जितनी कि महेंद्र सिंह धोनी को वर्ल्ड कप फाइनल 2011 के लिए दी गई थी, जबकि इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और सब लोग मानते हैं। सो नाउ अब ये कि ये कहना, इसके बाद तो ये इतने बड़े लाउड माउथ हैं भाई साहब, हर एक बात पे बोलते रहते हैं, सबको ज्ञान देते हैं कि ये है वो है फलाना है ढिमका एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन नहीं, इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये हर चीज़ में ना कमियां निकालते थे। अब जब इनके ऊपर आ गई, ही डजंट नो वेयर टू गो, ही डजंट नो व्हाट टू डू। अभी इनके कोई इंटरव्यू शॉट्स नहीं आ रहे हैं जब ये ज्ञान दिया करते थे, कुछ भी इनका नहीं आ रहा है। बाकी ये रवि शास्त्री को बोला करते थे कि उसने क्या जीता है, उन्होंने क्या जीता है, उन्होंने कुछ जीता ही नहीं है। अब आप बताइए आपने क्या जीता है, क्या जीता है आपने? आप होम टेस्ट सीरीज हार चुके हैं, आप श्रीलंका से भी हार चुके हैं, जिनके अगेंस्ट हम स्टार्ट बैट किया करते थे, अब उनसे भी हम ओडीआई और टी20 हार चुके हैं। न्यूजीलैंड से होम सीरीज हार चुके हैं, न्यूजीलैंड की औकात नहीं थी इंडिया में जीतने की, लेकिन हार चुके हैं। ना जाने कितने साल बाद, 35 साल बाद शायद न्यूजीलैंड जीता है इंडिया से। तो इतनी बड़ी डिफीट है ये, जिसको कि ना बड़ा खूबसूरती के साथ पेंट करके जो लॉबी है जो बता रही है ओह कितना खूबसूरत समय बंधा हुआ है कि 18 की जो स्ट्रीक है ब्रेक हुई है, बहुत ही खूबसूरत सफ़र था ये जो अब ख़त्म हो रहा है। जी सबको पता ख़त्म होता है सफ़र। धोनी ने पहले ही कह दिया था ना कि आप वर्ल्ड कप में कभी ना कभी पाकिस्तान से हारेंगे। दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन एट सम स्टेज, इफ नॉट नाउ देन नेक्स्ट ईयर, परहैप्स नेक्स्ट टू दैट ईयर, समवेयर डाउन द लाइन समथिंग इज गोइंग टू गेट ब्रोकन। बट इस तरीके से ये बोलना कि रोहित शर्मा का कॉन्फ्रेंस में कि बाहर कि 12 साल में तो एक तो चलता है यार, सर 12 साल में एक तो चलता है जब आपको कप्तानी इसी वजह से दी गई थी कि आप वर्ल्ड कप में विराट कोहली पाकिस्तान से हार गए थे, आपने तुरंत कप्तानी ले ली। तब तो आपने नहीं बोला कि इतने साल में तो चलता है यार, एक तो लॉस चलता है, आपने नहीं बोला। आपकी कप्तानी के एडिट चलते हैं कि आप गाली दे रहे हैं कि गार्डन में घूमा तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर आप जाके कपिल शर्मा शो में बोलते हैं कि ये जो लड़के हैं सुस्त मुर्गे हैं, जबकि आपसे भागा नहीं जाता है खुद, आप आउटफील्ड में रहते ही नहीं हैं, आप सिर्फ क्लोज सेक्टर्स में रहते हैं सो दैट आपको भागना ना पड़े। आपके रिफ्लेक्सेस थोड़े बहुत अभी भी ठीक हैं ईश्वर के कर्म से, तो आप इधर उधर उड़ के कैच लेते हैं, थोड़ा बहुत डाइव मार के रोक लेते हैं। लास्ट तो पिछले आई थिंक 6 महीने नहीं देखा, बट हाँ कर लेते हैं, ऐसा मैंने आपको देखा है करते हुए। लेकिन आप खुद नहीं भाग पाते हैं, बाकियों को आप टेलीविजन पे आके बोल रहे हैं आपकी टीम में सुस्त मुर्गे हैं, लोग हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं। वहाँ भी PR करवाने गए हैं कि अर्चना पूरन सिंह आपको सबसे पहले उठ के बोल देती हैं, बिफोर यू से समथिंग आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, यू प्लेड वेरी वेल, यू प्लेड बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। जाहिर सी बात है आप अपनी वहाँ पे झंड नहीं करवाने गए थे, आप अपना PR करवाने गए थे, है ना। आपको पहले से पता था वो क्या बोलने वाले हैं। जैसे हर कोई अपना मूवी जो एक्टर्स होते हैं वो अपना PR करने जाते हैं उसमें, सबको पता है, तो आप भी वही करने गए थे। आप कौन सा बहुत बड़ा वो अपना सच का सामना करने गए थे कि लाई डिटेक्टर के पास। तो ये जो चीज़ें हैं ना कि आप एक तो ख़राब परफॉर्मेंस दीजिए, उसके बाद उठ पटांग स्टेटमेंट दीजिए। गौतम गंभीर के स्टेटमेंट्स कहाँ मुझे दिख नहीं रहे हैं अभी। तो पहले इतना बोलते थे हर किसी के पॉडकास्ट में जाके, अब वो चुप होकर बैठे हुए मुँह सील कर, अब उनके पास कुछ नहीं बोलने लगा। So I don't know what is it going to be in the BGT. I don't know what is going to be the future for the Indian captainship. Whether Rohit Sharma, if we lose this 3-0, or if we lose BGT by a good margin, whether Rohit Sharma will continue till the next World Cup or till next Champions Trophy, or it will be the end of him and somebody else being made the captain. And also we need to figure out why Mumbai lobby is always allowed to play on the front foot when everybody is from the Mumbai lobby.
एवरीबडी, चीफ सेलेक्टर भी वहीं के हैं, चलिए वो तो वेस्ट जोन का अधिकार था इस बार का, जैसे चीफ सेलेक्टर अजीत अगर कर रहे हैं। रोहित शर्मा कप्तान बने हैं तो उनका ही बंदा रहेगा, तिलक वर्मा रहेगा, उन्हीं के सूर्य कुमार रहेंगे, उन्हीं के फलाना रहेंगे, उन्हीं के ढेमका रहेंगे। पहले भी होता था, तेंदुलकर के टाइम में भी होता था। साराज भौतले से लेके, रमेश पवार से लेके, नीलेश कुलकर्णी से लेके, इतने नखीत निकम्मे लोग खेल चुके इंडिया से, वही डर्रा आज भी चल रहा है, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रखती है। सरफराज खान की इतनी दलाली करी है मुंबई लॉबी ने कि एक टाइम पे दिलीप वेंगसरकर भी बोल रहे थे कि ये सरफराज को टीम में क्यों नहीं ले रहे हो, इतना अच्छा खेलता कर आपने ले लिया दिखा के। सर एकदम ख़त्म पिचेस पे ना 50 बना देना इज़ अ डिफरेंट मैटर, और बड़े मैचेस में परफॉर्म करके देना, स्पेशली व्हेन यू आर बीइंग प्रोजेक्टेड एज सम सॉर्ट ऑफ अ नेक्स्ट ब्रॉडमैन ऑफ द डोमेस्टिक सर्किट ऑफ इंडिया, वो करना चाहिए ना आपसे। अब टीम सिलेक्शन पता नहीं कि आपके पास बॉलर ही नहीं है बीजीटी के लिए। पहले 2 टेस्ट में शमी नहीं खेल रहे हैं बिकॉज मोहम्मद शमी इंजर्ड है। आपका प्रीमियर बॉलर है, वो आपका प्रीमियर बॉलर है जो कि सीध में बॉल करता है, सीम पटकता है, आपको उसकी स्पेशल देखरेख करनी चाहिए थी। मुकेश कुमार था, वो भी है शायद टीम में है, आकाशदीप भी है, पर आपके पास जेन्युइन पेसर्स कहाँ हैं? आप क्या ये मीडियम 130 135 वालों के साथ आप जाओगे बीजीटी में हराने उनको? पिछली बार तो गलती से लपकी झपकी लग गई, ऋषभ पंत had a miraculous feat, ठीक है, and then there was a brave attempt by Ashwin and Hanuma Vihari. We managed to save that test, and Ajinkya Rahane's heroics as a batsman that we managed to win the first or the second game, और फाइनल मैच में गाबा में ऋषभ पंत का हेरोइक्स की वजह से हम जीत गए। लेकिन आपको लगता है कि हर बार वो रिपीट हो पाएगा? वो नहीं होगा। It was a win by chance. We did not have any superiority in the game. Whether or not the promo guys tell you that, वो series could have easily gone 3-1 in Australia's favor. Second game was ours, and third and fourth we just escaped miraculously. वो efforts आपको वैसे जो efforts हैं ना हाशिम अमला और जो फाफ डुप्लेसी डिविलियर्स ने दिए थे कि भाई मैराथन एकदम टुक टुक कर करके एकदम इतना कर दिया कि ब्लंट डाउन कर दिया कि 400 बंदे 300 गेम बॉल खेल रहे हैं, 40 रन बना रहे हैं, लेकिन ऐसा किया कि सामने वाली टीम का अटैक ही ब्लंट कर दिया और मैच बचा लेगी। तो ये आप वो हर समय थोड़ी कर सकते हैं, वो भी 2 इनिंग्स में हुआ है उनके पूरे करियर में। कितनी बार अश्विन एंड हनुमा विहारी इज नॉट इवन द टीम, अश्विन कितनी बार करेंगे वो? आपके मेन बैट्समैन तो लग नहीं रहा है 25 बॉल से ज़्यादा खेलने के मूड में। रोहित शर्मा द इंटेंट मर्चेंट हैं, विराट कोहली को होता है कि भाई उनको नई तरीके चाहिए आउट होने के। बाकी आपके पास है ही कौन? ऋषभ पंत उठ पाट इधर उधर अपना बॉडी कंट्रोल नहीं होती उनसे। जायसवाल से रिवर्स स्वीप मारना है उनको ज़्यादा वो बनना है कि भाई एकदम फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन बनना है, rather than becoming a proper batsman. He just tends to be so flamboyant he gets out. Shubman Gill has slowly getting back into his groove. I'm not sure how is he going to perform in Australia, but he has played well. He's played a controlled innings in this game, and he got out in the 90s. I guess गंभीर इफेक्ट है क्योंकि खुद 97 पे आउट हुए, सबको बोलते होंगे भैया 97 is better than getting 100. So nobody is getting 100 except Sarfaraz in the first game, in the second innings of the first game. Nobody has got 100. So I'm not sure how it's going to be. But let's say we hope that India will play well in the Boragavaskar Trophy in Australia, and all the best to them. And I really believe that someday we will have an impartial selection of the Indian cricket team wherein Mumbai lobby will not rule the roost. Thank you so much. Thanks a lot. That's all from today. Have a good day. Bye-bye.